नाजरीन, मैं बड़ा मशकूर हूं हक वर्सेस बातिल चैनल देखने वाले क्यूरियस नाजरीन का, क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे मुतालबा किया था कि अगर आप 20 कमेंट लूसिड ड्रीमिंग के बारे में करोगे तो मैं उसकी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए जरूर पेश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आपने खूब सारे कमेंट करे, आपके प्यार से मैं मुअत्तर हो गया। आपका सपोर्ट बना रहा तो ये चैनल इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि कोई भी चैनल अपने देखने वालों की वजह से ही होता है। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। लूसिड ड्रीमिंग पर वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास हमेशा 2 से 3-4 वीडियो पाइपलाइन के अंदर होती हैं। तो पहले जिन वीडियोस के ऊपर मैंने काम किया है वो वीडियो पब्लिश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह लूसिड ड्रीमिंग पर भी वीडियो आ जाएगी। नाजरीन, आज का टॉपिक है शेप शिफ्टिंग क्रिएचर रेप्टिलियन अमंग ह्यूमन। सबसे पहले आप इस फुटेज को देखिए। हाल ही में ये औरत अमेरिकन एयरलाइन के अंदर सफर कर रही थी और इसने ये दावा किया कि उसने इस शख्स को अपना रूप बदलते हुए देखा है। आप जरा ये फुटेज देखिए। This woman claims she saw a shapeshifter on the plane and someone else on board agreed with her. I'm telling you, I'm getting the and there's a reason why I'm getting the and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now that back there is not real. The person she's talking to is the man in the green sweatshirt on the top left of your screen. He immediately demanded to get off of the plane as soon as she encountered this man before they took off. And I know what you're thinking, this sounds wild, but another man came out explaining his encounter with this person. वाकया अमेरिकन एयरलाइन का है। आपने फुटेज देखी। इसी प्लेन में एक और शख्स ने इस वाकये की शनाख्त कुछ इस तरीके से की। I was on that flight. It was American Airlines. We were leaving Dallas Fort Worth. I was sitting in the left aisle about 3 rows back from this woman. She was sitting in the right aisle and she had this very interesting exchange with some dude in a hoodie. What I remember is she was having like a full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with hoodie guy. The weird thing was that he never once said a fucking word to her the whole time. And at the time I don't know, I wasn't really thinking about it, but it was like it's like she would say something and he like would respond, but there was no exchange happening. It was just her getting more and more frantic, which, okay, if she's drunk and she's going crazy, then you would think the dude in the hoodie would have been like, what are you talking about? Like, what are you talking about? But he was just like dead locked on her, like deep eye contact with her, like I don't want to feed into the conspiracies here, but like almost like she was like in a hypnosis type of thing. She didn't seem drunk to me, by the way. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that point. The weird thing was after she left the plane, the dude in the hoodie, which the flight attendant was like, did anything happen? And he still didn't say a word. He just went like, and like shrugged. The dude in the hoodie like looked around the plane and he looked back at me and he winked at me. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking, like that was weird, wasn't it? But now that I look back, I realized that when he winked at me, and it was his left eye looking back at me, it didn't wink like this. It winked like this. हाल ही में हुआ ये वाकया सही है या गलत है, इसकी शनाख्त तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई एस्टेब्लिश प्रूफ नहीं है इस बात का कि कोई इंसान शेप शिफ्ट कर सकता हो, यानी रूप बदल सकता हो। हाँ, बहुत सारी कही सुनी कहानियां, लोक कथाएं, सिविलाइजेशन के बिलीफ दुनिया के अंदर मौजूद है। हाँ, एक बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्रिएचर इंसान के अलावा ऐसी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है जो अपना रूप बदल सकती है, शेप शिफ्ट कर सकती है। इसका जिक्र इस्लाम में मिलता है और हम सब जानते हैं इसको जिन्नात कहते हैं। ये उड़ भी सकते हैं और इनकी रसाई पहले आसमान तक होती है, रूप बदल सकते हैं, शेप शिफ्ट कर सकते हैं, इनके पास फ्री विल भी होती है और ये सही और गलत की समझ भी रखते हैं। यहां तक कि इंसानों की तरह ये सही और गलत कर भी सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रेप्टिलियन शेप शिफ्टिंग पीपल का है, तो उसी पर स्टिक रहते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जिन्नात अपना रूप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नबी अस्सलातु वस्सलाम के मक्का मुकर्रमा में दावत के शुरुआती दौर के अंदर मुशरिकीन मक्का ने एक मीटिंग की। मीटिंग इस बारे में थी कि नबी अस्सलातु वस्सलाम को दीन की दावत से कैसे रोका जाए। वाकया मिलता है इसी मीटिंग के अंदर इब्लीस एक बूढ़े शख्स के रूप में जाहिर हुआ और उसने मक्का के सरदारों को यह मशवरा दिया कि नबी अस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह
कत्ल कर दिया जाए। इस वाकये में इब्लीस इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ था। इंडियन मैथोलॉजी में कहा जाता है कि सांप 100 साल का होने के बाद इच्छाधारी नाग बन जाता है, यानी अपनी इच्छा से, अपनी डिजायर से किसी भी रूप में आ सकता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए इसको मैथोलॉजी कहा जाता है। हमारी दुनिया के अंदर ऐसी काफी सारी सिविलाइजेशन है जिनके अंदर शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का जिक्र मिलता है। जैसे सामरी लोग यानी सुमेरियंस का यह बिलीव था कि यह दुनिया सांप जैसे दिखने वाली क्रिएचर ने बनाई है। यह मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सिविलाइजेशन का यह मानना है। हकीकत हमें मालूम है खालिक सिर्फ अल्लाह है। सुमेरियन के टैबलेट जो 21st सेंचुरी में बरामद हुए हैं, उनको ट्रांसलेट किया गया तो उन पर लिखा था कि अनु ही वो खुदा था जिसने आदम को इल्म का फल खाने के लिए उकसाया था। बेबीलोनिया यानी मॉडर्न इराक के अंदर कुछ बुत मिले हैं जिनकी शक्ल सांप से मिलती है। ईसा मसीह से 2500 साल पहले चाइना पर यह शख्स राज करता था। इसको येलो एम्परर कहा जाता था। इसका कहना था कि यह ड्रैगन सांप के पेट से पैदा होकर इस दुनिया पर राज करने आया है। चाइना के शुरुआती 4 हुक्मरान आज भी चाइना की हिस्ट्री में ड्रैगन एम्परर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी ये चारों किंग पूरी दुनिया की चारों दिशाओं से पूरी दुनिया पर राज करते हैं और ये ड्रैगन एम्परर शेप शिफ्ट कर सकते थे। चाइना के अलावा जापान और कोरिया में भी शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का जिक्र मिलता है। जापानीज मैथोलॉजी में एक खुदा का जिक्र मिलता है जिसका नाम खापा है। ये देखने में कछुए की शक्ल का है और ये अपनी शेप शिफ्ट कर सकता था। लोग एंशिएंट टाइम में इसकी पूजा भी करते थे। चाइनीज ज़ोडिएक साइन में आज भी बाकी जानवरों के अलावा ड्रैगन भी शामिल है, लेकिन सब जानते हैं कि ड्रैगन जैसी क्रिएचर सिर्फ कहानियों किस्सों में मिलती है। रियल में ड्रैगन जैसी कोई क्रिएचर नहीं होती, लेकिन चाइनीज ज़ोडिएक साइन में जहां और मुख्तलिफ जानवर हैं वहां ड्रैगन को भी शामिल किया गया है। मायान सिविलाइजेशन नॉर्थ अमेरिका और खासकर मैक्सिको में पाई जाती थी। मायान सिविलाइजेशन पर हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है। उस मूवी में सारे लोग जंगली की तरह दिखते हैं, बिना बोले ही उस पूरी मूवी की शूटिंग वो कर देते हैं। मैंने वो मूवी नहीं देखी, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन कुछ फुटेज मैंने उसकी देखी है और मुझे पता ये चला कि ये मूवी मायान सिविलाइजेशन के बारे में है। उन्हीं मायान लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं। मायान लोगों का कहना था कि छिपकली के चेहरे वाले एक खुदा ने आसमान से आकर इन लोगों को तालीम दी कि ये ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए। मायान लोगों के हिसाब से इस छिपकली की शक्ल के दिखने वाले खुदा ने उनको ये तालीम दी कि वो अपने बच्चों को ही खा जाएं और एक अनुष्ठान भी सिखाया इस पूरे अमल को अमली जामा पहनाने के लिए। एशियन कंट्री कोलंबिया में एक कहानी बादशु की है जो एक औरत थी और एक अजदा में तब्दील हो गई थी। इस औरत को सर्पियंसिस लिस्टिया कहा जाता है। अमेरिकन स्टेट ओहायो में ईसा मसीह से 1200 साल पहले सरपेंट माउंट बनाया गया। इस पहाड़ पर बनी इस कंस्ट्रक्शन को सांप की शक्ल में डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि यह सांप आसमान में मौजूद सितारों के एक झुरमुट ड्रैको की नकल करके बनाया गया है। लोग यहां पर मुर्दे दफनाने के लिए इसको पुराने टाइम में इस कंस्ट्रक्शन को यूज करते थे। नॉर्दर्न एरिजोना के रहने वाले एंशिएंट इथोपियन का मानना था कि इस जमीन पर 2 तरह के इंसान रहते हैं। एक इंसान है जो आसमान से आए हैं और एक है जो जमीन से आए हैं। आसमान से आने वाले मखलूक इंसानों को चिल्ड्रन ऑफ फेदर और जमीनी मखलूक को चिल्ड्रन ऑफ रेप्टिलियन कहा गया। ऐसा कहा गया है कि जमीन के नीचे रहने वाले रेप्टिलियन अंडरग्राउंड बंकर बनाकर रहते हैं और जमीन पर आते जाते रहते हैं और लोगों से कांटेक्ट भी करते हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ बंकर बरामद हुए हैं जो बहुत ही बड़े हैं, बिल्कुल खाली हैं और काफी पुराने हैं। साउथ अफ्रीकन मैथोलॉजी में लूलू नाम के एक कबाइल का ये बिलीव था कि वो एक खुदा जो कि सांप की शक्ल का था उस पर बिलीव करते थे, जिसका नाम ये सांप जैसी शक्ल का इंसान उनके साथ जमीन पर ही रहता था, रोजमर्रा के काम करता था और लूलू कबीले के लोग इस सांप का फायदा उठाते थे इससे खजाने को ढूंढवाने के लिए। यानी जमीन के अंदर जो दबा हुआ खजाना था, ये सांप की शक्ल का इंसान उस खजाने को ढूंढने में
लूलू कबीले के लोगों की मदद करता था। रोमन मैथोलॉजी में भी हवाक नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसकी ऊपरी बॉडी इंसान की थी और निचली बॉडी एक सांप जैसी थी। रोमन मैथोलॉजी में ही एक फीमेल का जिक्र भी मिलता है जिसका नाम लमीसा था, जिसकी ऊपर की बॉडी औरतों जैसी थी और जिसकी नीचे की बॉडी सांप जैसी थी। मडूसा को तो हॉलीवुड मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके कई बार पिक्चराइज किया गया है। मडूसा वही है जिसके बाल नहीं बल्कि सांप हैं। इंडियन मैथोलॉजी में पाताल का जिक्र मिलता है जहां पर सांप इंसान की सूरत में मिलते हैं। 90s में इसी पाताल मैथोलॉजी के ऊपर एक इंडिया में कॉमिक्स भी शाया की गई जिसमें मेन कैरेक्टर तोशी था जो कि एक इच्छाधारी नाग था और इंसान की शक्ल में पाताल की दुनिया पर राज करता था। तोशी बहुत ज्यादा फेमस इंडियन कॉमिक्स में नहीं हुआ, लेकिन नागराज को कौन नहीं जानता। राज कॉमिक्स का सुपर हीरो नागराज पूरे इंडिया में सबको पता है और वो भी इसी इंडियन पाताल मैथोलॉजी यानी इच्छाधारी सांप के ऊपर बनाया गया है, यानी उससे इंस्पायर है। शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन क्रिएचर के बारे में जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन का मैंने जिक्र किया, ये 20% भी नहीं है उन बिलीव्स का जो पूरी दुनिया में किसी ना किसी रूप में शेप शिफ्टिंग क्रिएचर को जानते हैं, यानी एक ऐसी क्रिएचर जो कि अपनी शेप शिफ्ट कर सकती है और वो सांप जैसी दिखती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हर इंसान के दिमाग में एक रेप्टिलियन जीन पाया जाता है और हर इंसान की टेल बोन भी होती है। अब हर इंसान की टेल बोन क्यों होती है और क्यों इंसान के दिमाग में रेप्टिलियन जीन पाया जाता है, इसका जिक्र मैं कभी और किसी वीडियो में करूंगा क्योंकि ये अपने आप में एक मुख्तलिफ टॉपिक है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने पता लगाया है एक ऐसे पैरासाइट यानी कीड़ा, एक ऐसे पैरासाइट का जो रेप्टिलियन जानवरों के दिमाग में रहता है। Scientists found parasitic worms inside the brains of lizard embryos before the animals ever hatched. How did they get there? It turns out that these parasitic worms hide out in the ovaries of the lizard's mothers and then make their way into the developing embryo before a hardened shell forms around the animal. The scientists that found these worms believe this is the first time a parasite has been found that passed from a mother reptile into its offspring. This has been found in mammalian species where a parasite can either pass through the placenta to the developing animal or it can be passed on through the breast milk after birth. Because this sort of parasitic transmission hadn't been seen in reptiles before, scientists thought that by laying eggs, reptiles actually restricted the number of ways that parasites can get into their young, so they'd have to wait until the animals actually hatch before, burrowing into their brains. But after making the shocking discovery of these worms inside lizard embryos, scientists now think that reptilian embryos might be more vulnerable to parasites than once thought. But they don't yet know how these worms might affect the animal's health and behavior after they hatch. हर फिजिकल बीइंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन रेप्टिलियन यानी रेंगने वाले जानवर जैसे कि सांप, कछुआ, जमीन पर रेंगने वाले ड्रैगन, लिजर्ड, इन सब के दिमाग में ये पैरासाइट रहता है, ये कीड़ा रहता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डोनाल्ड मार्शल का कहना था कि 32 डिग्री फ्रीमेसन को 33 डिग्री फ्रीमेसन बनाने के लिए एक रिचुअल करना होता है। इस रिचुअल में ये पैरासाइट, जिस कीड़े का मैंने जिक्र किया कि वो रेप्टिलियन के दिमाग में रहता है, इस रिचुअल के अंदर ये पैरासाइट 32 डिग्री फ्रीमेसन की आंख में दाखिल किया जाता है। ये पैरासाइट 32 डिग्री फ्रीमेसन की आंख में दाखिल होने के बाद उसके दिमाग में रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स में जाकर बैठ जाता है और ये वहीं पर रहता है जैसे कि रेप्टिलियन जानवरों के अंदर रहता है। इसी तरीके से 32 डिग्री फ्रीमेसन को 33 डिग्री फ्रीमेसन बनाने के लिए ये रिचुअल किया जाता है। ये रिचुअल मुकम्मल होने के बाद ये नया इंसान 33 डिग्री फ्रीमेसन बन जाता है और इसको इब्लीस आके अपने दर्शन खुद देता है और अब ये डायरेक्टली इब्लीस के कांटेक्ट में रहता है। इस पैरासाइट के उसके दिमाग में रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स में कब्जा करने के बाद इस इंसान के अंदर से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है और ये इंसान की शक्ल में एक शैतान बन जाता है। ऐसा कहना था कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डोनाल्ड मार्शल का। डोनाल्ड मार्शल की ये रिसर्च अब आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर तो डोनाल्ड मार्शल के नाम से कोई शख्स आता ही नहीं है।
अजीजों, आज की दुनिया में 8 बिलियन इंसानों की आबादी है, जिसमें से 2 बिलियन ही मुसलमान हैं जो अल्लाह को एक ही मानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कभी भी सारे के सारे मुसलमान नहीं हुए, और वो एरिया दुनिया के जहां पर मुसलमान नहीं थे, इब्लीस ने अपने जिन्नात को रेप्टिलियन बनाकर जाहिर किया और लोगों के डर को यूज करके उनसे अपनी परस्तिश करवाई। हम मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर तरह के इल्म के बारे में पहले से आगाह कर गए हैं। इसीलिए हम जानते हैं पूरी दुनिया की जो सिविलाइजेशन थोड़ी सी मैंने जिक्र की, जहां पर ये शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का जिक्र मिलता है, वो कोई और नहीं बल्कि खबीस जिन्नात ही हैं। तो इस वीडियो में मैंने दुनिया की मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के अंदर रेप्टिलियन का जिक्र किया और उस औरत का भी शुरुआत में जिक्र किया जिसने ये दावा किया कि उसने प्लेन के अंदर एक शेप शिफ्टिंग इंसान को या शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन को देखा है। ये वीडियो यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, जो आपको कल या परसों मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रेप्टिलियन कैसे इस दुनिया के ऊपर एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं, यहां तक कि ये इंसान के दिमाग को भी बहुत हद तक हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो गए हैं। अपनी बात को सही से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करूंगा हॉलीवुड की एक मूवी को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बने रहें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।